redevelopment in a cooperative housing society, and what does the 4th July 2019 government circular say? This is basically on that topic I am going to speak today to all of you. So let us start with the situation. A building structure is dilapidated. Building की हालत जर्जर है, बिल्डिंग की हालत खस्ता है. रिपेयर्स कुड बी द ऑप्शन. तो अगर बिल्डिंग की कंडीशन ख़राब है तो रिपेयर्स के लिए आप जा सकते हो, लेकिन रिपेयर्स के लिए जाओगे तो खर्चा आने वाला है, और क्योंकि खर्चा आने वाला है तो कई बार हमने ये देखा है कि द बेस्ट ऑप्शन और द फेवरेट चॉइस रिमेन्स redevelopment and redevelopment. मतलब people would like to go for redevelopment. Now the very simple reason behind going for redevelopment I can share with you कि wherever there is खर्चा people would like to avoid it. Redevelopment में there is a myth. लोगों को ऐसे लगता है कि redevelopment में मुझे कुछ नहीं देना है. redevelopment मतलब सिर्फ आन दे, मुझे एरिया मिलेगी नहीं, कॉर्पस मिलेगा, रेंट मिलेगा, शिफ्टिंग चार्ज मिलेगा, बैंक गारंटी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा. सो अगर फुकट में जो मिलने वाला है तो मेरी चॉइस तो रीडेवलपमेंट ही रहेगी. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज़ ए क्राइसिस एंड पीपल आर फेसिंग लीकेज और सीपेज काइंड ऑफ इश्यूज, people would definitely like to ask if there is an option, why not take it? So the best choice remains redevelopment. People would like to go for redevelopment of the building. Now, what is the general method implemented for initiating the redevelopment process? An SGBM is called. SGBM is a special general body meeting is called for passing a resolution for the redevelopment. मतलब ये एक general practice है कि anything that is required from the society's angle, we call in for a special general body meeting. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में सबको पूछा जाता है आपकी राय क्या है, एंड मेजॉरिटी वॉट एवर दे डिसाइड वी गो अबाउट विद इट. सो जनरल बॉडी का भी रीडेवलपमेंट का भी इसी तरीके से सोचा जाता है कि वील कॉल फॉर अ जनरल बॉडी. इन द जनरल बॉडी व्हाट द मेजॉरिटी सेज वी विल स्टार्ट. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर गोइंग टू इनिशिएट अ रीडेवलपमेंट प्रोसेस, then this is not the right procedure. The right procedure is what? The right procedure is to follow the directives given by the government of Maharashtra to all the cooperative housing societies in Maharashtra state under section 79A of the Maharashtra Cooperative Societies Act 1961, issued by the Cooperative Marketing and Textile Department in relation to the redevelopment of the cooperative housing society. So in case your society is planning to go for a redevelopment, so instead of calling for a general body and initiating the procedure, please try to follow what is written in section 79A. This circular was being followed from 3rd January 2009 to 3rd July 2019. मतलब virtually 10 years से भी ज़्यादा इस सर्कुलर के तहत redevelopment process was being conducted. Then considering to make the necessary changes in the directives of the earlier guidelines dated 3rd January for giving impetus to the redevelopment procedure in the state, the government, following directions according to section 79A of the Maharashtra Cooperative Societies Act 1960, issued revised guidelines superseding the Cooperation and Marketing and Textile Department government resolution dated 3rd January 2009. And on 4th July 2019, this circular was issued under section 79A of the MCS Act regarding the redevelopment of the cooperative housing societies with a government resolution dated 4th July 2019. So as of date 3 जुलाई के बाद 3 जुलाई 2019 के बाद अगर कोई सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, कर रही है या करना चाहती है, तो दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस or the directives issued as per the 4th July 2019 government circular. As per the bylaws of the cooperative housing society, अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी की उम्र 15 और 30 साल की बीच की है तो you need to carry out the structural audit of your building every 5 years once. Similarly,
If your building age is above 30 years, अगर 30 साल से ऊपर आपकी सोसाइटी की आयु है, तो हर 3 साल में एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. Now this structural audit report is a very very important report, because not only is it mandatory for the members to carry out the structural audit, but this structural audit report will actually tell you कि what kind of health your society is at the current situation. मतलब this report will give you an approximation of what kind of expenditure you will have to incur for carrying out those repair work. So structural audit generally forms the basis for a society to decide whether it wants to go for redevelopment or repairs. Now इस government circular में क्या क्या resolutions दिए, I am going to hit on that first. The society can take the decision regarding redevelopment in the general body if competent authority declares the building is dilapidated or in the state of collapse or danger for residing or could cause danger to any neighboring structure or place. मतलब अगर आपकी बिल्डिंग, मतलब जब आप स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हो या किसी भी संस्था से आपको ये रिपोर्ट मिलता है कि आपकी बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में डिक्लेयर हो जाती है कि जहाँ पे वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है या उसके गिरने से कुछ हानि हो सकती है, तो ये आपके पास अगर इस प्रकार का कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिक्लेरेशन होगा, तो दिस विल हेल्प यू टू इनिशिएट द रीडेवलपमेंट प्रोसेस. At the same time, the directives given in relation to the redevelopment of the cooperative housing society building, it is applicable to all types of redevelopment. मतलब अब ये जो 4 जुलाई का सर्कुलर है, वो किसी भी प्रकार का रीडेवलपमेंट आप करने को जा रहे हो तो उसमें वो लागू है. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रीडेवलपमेंट हो, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट बाय फेडरेशन हो, एनी टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको 4 जुलाई का सर्कुलर लागू है और उसके तहत जो भी क्लॉजेज या जो भी स्टेजेस दिया है, इट इज़ नेसेसरी दैट यू फॉलो दो स्टेजेस. द रीडेवलपमेंट डिसीजन टू बी टेकन इन द स्पेशल जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी ओनली. प्लीज रिमेंबर, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द मैनेजिंग कमिटी डज नॉट हैव एनी पावर्स फॉर taking any kind of important decisions regarding the redevelopment. All decisions for the redevelopment are required to be taken only in the special general body meetings. Then there is a resolution which says that redevelopment shall be taken under the registered bylaws of that society and procedures stipulated through the guidelines in the SGBM of the society. So it says that bylaws की provisions को मद्देनजर रखते हुए आपको मूव करना है. Simple चीज़, like you should have a constituted body, okay, general body is supreme, follow section 79A, whatever is written in the bylaws. It says that redevelopment needs to be taken under the registered bylaws. So registered bylaws में जो clauses दिए which are concerning the redevelopment, you need to follow that. The authorized officer or administrator appointed by the registrar cannot take the decision of the redevelopment. देखो, in the past we have experienced a situation where the moment society goes for redevelopment, किसी भी प्रकार से वो बॉडी डिसॉल्व की जाती थी. डिसॉल्व करने के बाद उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाता था और एडमिनिस्ट्रेटर इस रीडेवलपमेंट प्रक्रिया को आगे ले जाता था, जिसमें बहुत कटु अनुभव लोगों को मिले हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं. सो टुडे लेट मी शेयर विथ यू the 4th July 2019 circular clearly indicates and informs that the authorized officer or the administrator appointed by the registrar cannot take the decision of the redevelopment of the building. मतलब उनको कार्य दिया जाएगा कि ही आई माइट कम एंड डू दी डॉक्यूमेंटेशंस, आपके रिकॉर्ड्स चेक करना, ठीक करना या इलेक्शन करना, उनको स्पेसिफिक कार्य दिया जाएगा जिसमें रीडेवलपमेंट विल नेवर बी इंक्लूडेड. The managing committee is required to be a properly elected body constituted as per the provisions of the MCS Act. So please understand, before you start
on the redevelopment issue, ensure that जो managing committee is currently looking after the affairs of the society, they need to be a properly constituted elected body. The procedure of the redevelopment, what it says that if your society wants to initiate the process for redevelopment, as I have already mentioned to you, जनरल बॉडी बुला के उनको पूछ के हमने शुरुआत की, वो गलत तरीका होगा. द राइट प्रोसेस इज दैट मिनिमम 1/5 ऑफ योर मेंबर्स, 20% मेंबर्स, आपकी जो भी संख्या है, वो एक रिक्विजिशन लेटर बनाते हैं जिसमें वो ये लिखते हैं कि भाई वी एज मेंबर्स आर रिक्वेस्टिंग यू टू कॉल अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग to decide the policy to undertake the redevelopment with a plan and suggestions regarding the redevelopment. So they have to come forward and prepare a simple requisition letter stating that why doesn't the society start with the process for carrying out the redevelopment. It should be signed with minimum 20%. It could be 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 or 100%, no issues. बट मिनिमम 20% पीपल ने अगर उस पर स्वाक्षरी दी है, साइन किया है, तो दैट लेटर आफ्टर द सिग्नेचर इज ओवर, यू आर गोइंग टू हैंड इट ओवर टू द मैनेजिंग कमिटी. सॉरी, एनी लेटर दैट कम्स टू द सोसाइटी is going to be placed before the managing committee. So similarly, the moment this requisition letter is received from the member, it is the duty of the managing committee to call for a managing committee meeting within 8 days from receipt of this letter. So ये कितना महत्वपूर्ण आप समझिए. कमिटी ये नहीं कह सकती कि हमने 2 दिन पहले कमिटी मीटिंग हमारी इस महीने की पूरी की है, तो अब हम अगले महीने इस लेटर को लेंगे. इस सर्कुलर में डायरेक्टिव्स क्लियर कट दिए गए हैं कि जिस दिन मैनेजिंग कमेटी को ये लेटर मिलता है, रिक्वेशन लेटर जिसको हम कहते हैं, विदिन 8 डेज उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है कि वो नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग बुलाए, जिस मीटिंग में इस लेटर पे चर्चा होगी. और बिकॉज मोर देन 20% पीपल हैव रिक्वेस्टेड फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीजर, तो that day you will decide to initiate the procedure wherein within 2 months period you are going to call for a special general body meeting where you are going to finish the first stage of the redevelopment of appointing the project management consultancy. As per the amendment carried out in section 79A, for the purpose of redevelopment, when you are going to follow this circular, it says that this special general body meeting, which is going to be called for selecting the project management consultant, the SGBM notice period will be for clear 14 days. Instead of 5 days, it is clear 14 days, and this notice has to be distributed to the members and an acknowledgement should be obtained, which will be recorded and stored in the society records. This special general body meeting for selection of the PMC, the managing committee is required to at least obtain minimum 3 quotations from different project management consultancy, for which there is no requirement of placing any kind of advertisement in the newspaper. So society को क्या करना पड़ेगा? society को एक notice निकालना पड़ेगा. The notice will say that the society is in the process for initiating the redevelopment of our society building, structure and surrounding property, for which members are requested to approach their known architects stroke project management consultants and obtain interest letters or quotations from them, wherein they would be interested to provide professional services for assisting the managing committee to carry out the entire redevelopment process. So once this notice is put up on the notice board on your WhatsApp, wherever you need to circulate, it is the members' duty to go and find out any known sources who can offer their professional services with their scope of work and fees in the form of a quotation.
नाउ यहाँ पे ये जो नया सर्कुलर है 4 जुलाई का, उसमें एक नई बात रखी है विच सेज दैट द सोसाइटी नीड्स टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट and intimate the honorable register about it. The notices and minutes shall be sent by email or in person or by registered post. So आप सभी को याद है कि हम हमेशा इन पर्सन ही भेजते थे. अगर कोई पर्सन आउट ऑफ स्टेशन है या किसी ने फ्लैट भाड़े पर रख के बाहर गया है एंड वो इंसिस्ट करते कि आप मुझे भेज दी, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी लोग भेजते थे उनको. लेकिन अब आप देखोगे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है that you can also email these notices and minutes to the members, for which each member has to submit his email ID and contact particulars. So based on the email IDs that you are going to give the society is going to remain in touch with you and is going to share all information on the email, which is now official. The new directives for maintaining transparency, what do they say? It says that all redevelopment related information to be published on notice board, which we are doing for so many years. Agenda notice and minutes of the SGBM to be emailed and a hard copy to be submitted to the deputy registrar within 15 days from the meeting. ये मैंने क्यों आपके समक्ष रखा है कि नॉर्मल आप सभी को पता है कि जब जनरल बॉडी मीटिंग होती है उसके बाद आपके पास 90 डेज का समय है उस मीटिंग के मिनट्स बनाने के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए एमसी में, उसके बाद 15 डेज. मतलब ये जो अवधि दी गई है यहाँ पे जो डायरेक्टिव्स दी गई है वो इस प्रकार से है कि आपके जो मिनट्स बनते हैं इस मीटिंग के, जहाँ आप पीएमसी सिलेक्ट करने वाले हो, उस मिनट्स की कॉपी आप सभी को, मतलब पहली बात तो 15 दिन के अंदर ये मिनट्स बनने चाहिए, मतलब इसको 3 महीने की अवधि नहीं दी गई है, ये पहली बात है. दूसरी बात, ये मिनट्स सबको सर्कुलेट करना अनिवार्य है. तीसरी बात, इस मिनट्स की कॉपी 15 दिन के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको इनवर्ट करनी है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट रीडेवलपमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर. रीडेवलपमेंट ये कतई मजाक नहीं है. रीडेवलपमेंट को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए. और ये जितने प्रोविजंस 4 जुलाई 2019 के डायरेक्टिव्स जो गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है. जब सोसाइटी इसमें शॉर्टकट लेती है या इसका पालन नहीं करती है तो अक्सर देखा गया है कि लिटिगेशंस डेवलप होते हैं एंड लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ता है. फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनली आदमी ड्रेन आउट हो जाता है एंड ब्लेम गेम इसमें बहुत ज़्यादा चलता है. तो अगर इस सब चीज़ों से बचना है तो अंडरस्टैंड कि इसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसका ठीक तरह से पालन करना ये आपका आद्य कर्तव्य है. और अगर वो आप करते हो तो रीडेवलपमेंट में कठिनाइयों का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा. कठिनाइयाँ आएंगी नहीं ये वाक्य में नहीं कहूँगा, बट यू मे हैव टू फेस अ लिटिल लेस प्रॉब्लम्स इन कंपैरिजन टू द सिचुएशन वेयर यू आर नॉट फॉलोड द गाइडलाइंस. सो ऑल एक्नॉलेजमेंट्स टू बी स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स. एजेंडा ऑफ दिस नोटिस, मतलब ये जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आप बुलाने जा रहे हो जहाँ पे आप पीएमसी सिलेक्ट करने वाले हो, जनरली यू विल ऑल एग्री विथ मी कि जनरल बॉडी का एजेंडा मैनेजिंग कमेटी बनाती है. अक्सर सेक्रेटरी या चेयरमैन डिसाइड करता है हम कौन से टॉपिक डिसाइड करने वाले. लेकिन रीडेवलपमेंट का अगर आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग रीडेवलपमेंट में आप बुलाने वाले हो, जिस मीटिंग में आप पीएमसी सिलेक्ट करने वाले हो, उस मीटिंग का एजेंडा इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. नाउ one more point which I like to share with you is what are the duty of the member. एक मेंबर होने के नाते आपका कर्तव्य क्या क्या है इस रीडेवलपमेंट प्रक्रिया में. नंबर 1, you have to submit a realistic plans if you have any suggestions and recommendations regarding the redevelopment. अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आपके पास कोई एक अच्छा ऑप्शन है रीडेवलपमेंट में सबके हित में, अगर ऐसा कोई भी आपके पास विकल्प है तो वो राइटिंग में सोसाइटी को प्रोड्यूस करना आपका कर्तव्य है. ये मैं इसलिए आपको रेड में दिखा रहा हूँ
क्योंकि 100% हमने देखा हुआ है कि सोसाइटी में जो खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं या हु थिंक दैट दे नो मोर देन एनीबडी एल्स, अनफॉर्चुनेटली यह लोग सोसाइटी की मीटिंग में नहीं आते हैं, सोसाइटी मीटिंग को अवॉइड करते हैं और ये एक गुट बना के नाके पे खड़े रहकर अपनी सोसाइटी में किस तरह से सोसाइटी चलनी चाहिए इसके ऊपर बहस करते हैं, लेक्चरबाजी होती है, मजाक उड़ाया जाता है। उनके पास जो सुझाव है वो रास्ते पे डिस्कस किए जाते हैं या किसी इंडिविजुअल घर में बैठकर वो डिस्कस किए जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ रियलिस्टिक प्लान or suggestions and recommendations regarding the redevelopment, it is the duty of the members to present it to the society in writing, जिसके ऊपर चर्चा होगी, जिसके ऊपर बहस होगी, लेकिन अगर वो सचमुच सबके हित का है तो उसका इस्तेमाल भी होगा। Then as a member it is your duty to go and find out if there is any experienced or an expert architect PMC that you know। आपका कर्तव्य है कि आप वहाँ तक पहुँचो, उनसे बातचीत करो, हो सके तो उनसे कंसेंट लेटर या उनके पास से कोई कोटेशन प्राप्त करके एटलीस्ट 8 days बिफोर द मीटिंग आप सोसाइटी को दो। इनफैक्ट आई वुड से कि व्हेन द सोसाइटी डिसाइड्स फॉर अ डेट टू कॉल द कोटेशंस फ्रॉम द आर्किटेक्ट स्ट्रोक PMC, then in that period it is a duty of the members to go and approach their choice of PMC or architect, bring their quotations and also participate in the process for selecting the PMC, because selection of the PMC is absolutely going to decide your future। अगर PMC गलत सिलेक्ट किया बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आप कर लोगे, अगर PMC सही सिलेक्ट किया तो रीडेवलपमेंट एंड तक बहुत स्मूथली जाएगा। अब इस PMC को सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें जैसे मैंने बताया कि यू आर गोइंग टू कॉल फॉर अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। उस जनरल बॉडी मीटिंग का जो एजेंडा होगा, देयर विल बी ओनली 3 एजेंडाज इन दैट मीटिंग, देयर विल बी नो 4th एजेंडा इन दैट मीटिंग। व्हाट इज द एजेंडा? ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं। द फर्स्ट एजेंडा इज टू टेक अ प्राइमरी डिसीजन after considering the demands and suggestions from the members on the redevelopment of the society building। मतलब लोगों ने आपकी तरफ जो 20% लोगों ने साइन करके नोट भेजा है या लोगों ने कुछ सजेशंस भेजे हैं, कुछ रिमार्क्स भेजे हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस दिन आपका पहला एजेंडा होगा लोगों से समझने के लिए कि वेदर एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो इन फॉर रीडेवलपमेंट। तो आप एक वोटिंग प्रक्रिया उसमें लेने वाले हो। तो ये पहला रेजोल्यूशन आप पास करोगे आइदर यूनानिमसली और विथ मेजॉरिटी। इफ एनी मेंबर हैज गॉट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशंस, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस, द सेम नीड टू बी नोटेड इन द मिनट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, इवन इफ one person has any kind of objections, the same need to be noted in the minutes। आप माइनॉरिटी को ठुकरा नहीं सकते। if they have to say something you need to note it, but decision making always goes with the majority। once this first agenda is taken care of, you have a proposer and a seconder to initiating the process for doing the redevelopment। the second item on the agenda will be to select an expert and experienced architect stroke PMC who are impaneled by the government stroke local authority for the work of redevelopment and frame rules stroke conditions for their work। तात्पर्य यह है कि सेकेंड एजेंडा आपका यह कहता है कि आपके पास जितनी निविदा आई है, जितने कोटेशंस आए हैं अलग अलग आर्किटेक्ट या PMC फर्म्स में से, वो उनमें से आपको एक आर्किटेक्ट स्ट्रोक PMC किसी को एक को आपको चयन करना है, सिलेक्शन करना है उस दिन। अब यहाँ पे लिखा है कि हु आर एम्पैनल्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जिस भी PMC को आप अपॉइंट करने वाले हो, उस PMC के अंडर जितने प्रोफेशनल्स काम करने वाले हैं वो
प्रॉपरली कहीं ना कहीं एम्पैनल्ड या किसी गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी में उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने पीएमसीज आए हैं, अगर बहुत बड़ी तादाद में आपके पास कोटेशंस आए हैं तो देन ऑब्वियसली आपको उनको शॉर्टलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएमसी। नाम क्या है, इनका ऑफिस कहाँ है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, इन्होंने प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, कितने सक्सेसफुल डिलीवर किए हैं, कितने फेलियर्स है इसमें, इनका कोई लिटिगेशन हिस्ट्री तो नहीं है, इन्होंने प्रोमिसेस प्रॉपरली फुलफिल किए कि नहीं, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है जहाँ इनका पीएमसी था वो बराबर हुआ है कि नहीं। ऐसे बहुत सारी जानकारी निकालने का काम आपके मेंबर्स का होता है और इस जानकारी के बलबूते पर on the basis of the information that you are going to gather regarding the PMC, you are going to decide कि which is the number 1 PMC, which is number 2 PMC, which is number 3 PMC, which is number 4 PMC। मतलब उनको ग्रेडिंग आप दोगे आपके इंफॉर्मेशन के, आपके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक। वंस यू गिव दम अ ग्रेडिंग, देन एज आई सेड आप शॉर्टलिस्ट कीजिए उनको, एंड आइडियली आई वुड से आप 3 जन को शॉर्टलिस्ट करो और 3 जन को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इस स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में उसमें से एक पीएमसी को आपको सिलेक्ट करना है। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डू द सिलेक्शन प्रोसेस, मेंबर्स शुड अंडरस्टैंड कि दे कैनॉट से ऑन दैट डे कि मुझे ये भी पीएमसी अच्छा लग रहा है और ये दूसरा पीएमसी भी खराब नहीं है। उस दिन आपकी चॉइस एक पीएमसी पे ही आके रुकनी चाहिए। तो जाहिर है 3 पीएमसी में से जिस पीएमसी को मैक्सिमम वोट मिलेंगे उस पीएमसी को सिलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। Then the next agenda is to submit the project report of the proposed redevelopment of the society building. Now, in all fairness, although this agenda says to submit the project of proposed redevelopment, technically this is not possible for the simple reason that today in the first agenda you have decided to start redevelopment. In the second agenda you are going to appoint the PMC. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो इस वक्त किसी के हाथ में नहीं होगा। तो what we expect is when you are discussing the third subject, there you could sit down and start discussing amongst yourself कि whether हम ये redevelopment process through the builder करने वाले हैं, through self redevelopment करने वाले हैं या थ्रू डीएम मॉडल करने वाले। इसकी एक छोटी सी चर्चा आप लोग कर सकते हो, बेस्ड ऑन विच यू कुड पास अ रेजोल्यूशन कि वी वुड लाइक टू ऑल गो बाय द रीडेवलपमेंट प्रोसेस बाय अपॉइंटिंग अ बिल्डर और सेल्फ और डीएम मॉडल, विच एवर योर मेंबर्स थिंक इज गुड इन देयर ओपिनियन। सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी सिंपल विथ मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग लेने वालों। अगेन एनी टाइप ऑफ अप्रूवल, ओपिनियन, रिमार्क्स whether written or oral of any absent member shall not be considered in the general body। मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर कट दिया गया है। देखो अक्सर ये देखा गया था कि मेंबर एक तो जनरल बॉडी अटेंड नहीं करता है, फिर वर्बली आपली धौस जमात आहे की मला वाटतं हा आपल्याला पीएमसी आता करायचं नाही, आपण नंतर करूया, किंवा पीएमसी करायचंच नाही आहे, वॉट एव्हर, किंवा रिडेव्हलपमेंट करायचंच नाही आहे, समथिंग लाईक दॅट। और देर आर पीपल who send written letters, notices, advocate notices against, trying to state their wish कि ये नहीं होना चाहिए। 4th July 2019 circular clearly states that any type of approval or opinion, remarks whether written or oral of any absent member will not be considered। मतलब अगर आप मेंबर हो और आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हो तो आपको क्या कहना है इसके कोई मायने नहीं है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट एनी टाइम। सो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रखना है, कोई ओपिनियन रखना है, डिस्कशन में भाग लेना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। सो एब्सेंट वाले आदमी का कुछ सुना नहीं जाएगा। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड एजेंडा जो है टू सिलेक्ट दी पीएमसी, यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया के थ्रू आपको लेना है, जहां आइदर बाय रेज ऑफ हैंड्स आप कर सकते हो और सीक्रेट बैलेट के हिसाब से भी आप ये वोटिंग प्रक्रिया हैंडल कर सकते हो।
इसका कारण बहुत सिंपल है। कई बार हमने देखा है कि दबाव में आकर लोग वोटिंग करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ मेंबर्स है, एंड पीपल से दैट वी वुड लाइक टू गो बाय सीक्रेट बैलेट, तो सीक्रेट बैलेट के तहत भी आप 100% वोटिंग की प्रक्रिया कर सकते हो, जिसमें 3 में से 1 पीएमसी को आप नियुक्त कर सकते हो। उसी प्रकार जहाँ कहा है कि टू सबमिट द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे यह चर्चा हो सकती है कि हमको रीडेवलपमेंट किस प्रकार से आगे ले चलना है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द एसजीएम इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर ऑल सजेशंस, recommendations and objections of all members regarding the redevelopment। मतलब उस मीटिंग में मेंबर अगर कोई सजेशन रखता है, कोई रिकमेंडेशन रखता है, या इवन उसका कोई ऑब्जेक्शन होता है, तो ये ज़रूरी है कि उस चीज़ को मिनट्स में आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको मिनट्स में, उसकी नोंद करनी पड़ेगी। एंड एनीथिंग, any kind of suggestions recommended given by the member will be required to be taken on record. Opinion of all members expressed in this regard shall be mentioned with name in the minutes। So जब minutes लिखे जाएंगे तो उसके साथ में किसने क्या कहा था, of course which is pertaining to the redevelopment, important issues को definitely highlight करके लिखा जाएगा। All decisions pertaining to redevelopment to be decided by 51, जो मैंने already बताया। Any type of approval remarks if you are absent will not be considered। ये पीएमसी क्या है और पीएमसी के लिए हमको किस प्रकार के प्रोफेशनल्स लगने वाले हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। फॉर कैरिंग आउट अ रीडेवलपमेंट प्रोसेस there are 5 professionals which a society is going to require। To begin with, a housing consultant like me, who is going to not only start from explaining to you what is the section 79A, but entire whatever till the redevelopment is over, all the committee meetings, the general body meetings which are pertaining to the redevelopment topic, the housing consultant will be conducting, helping you, assisting you, guiding you throughout the process। The architect, who is going to be the backbone, the advocate or the legal person, a chartered accountant who will be helping you with understanding the accounts part, an engineer or a technical person, I would put it that way, who is going to be of great help to you once the construction activity is going to start। Now when you are selecting the PMC, please understand that the PMC should be having an extensive experience, knowledge and expertise in this field। The professional responsibilities is to suggest, prepare, check, correct, approve and monitor each and every stage of the redevelopment। When a society is going to appoint a PMC, please find out whether the PMC is going to give you all those kind of services that I have listed out, because the professional fees should never be the single criteria for selection of PMC। मतलब अगर सर्विसेज आपको कम मिल रही है, प्रोफेशनल्स कम है और सस्ते में पीएमसी मिल रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड उनकी फीस शुड नेवर डिसाइड द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अ पीएमसी। इट शुड ऑलवेज बी दैट पीएमसी जिसको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी फीस क्या मायने नहीं रखता है, उनका कैलिबर क्या है, उनके एक्सपर्टीज क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये मायने रखता है। At the same time, the members need to actively participate in the selection process, because जैसे मैंने कहा कि इनिशियल कोई आगे आता नहीं है और इलेक्शन या सिलेक्शन होने के बाद वो अपनी राय रखना शुरू करते हैं, which only hampers or causes hurdles for the progress of the redevelopment। So members definitely, हर मेंबर का कर्तव्य है कि इस प्रोसेस में सहभाग ले, कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि आखिर में वो आपके घर के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। सो यू आर गोइंग टू द बेनिफिशियरी टू दिस एंटायर प्रोसेस। सो दैट गोज विदाउट सेइंग, इफ यू आर गोइंग टू बेनिफिट यू नीड टू पार्टिसिपेट, एंड हियर आई मीन पार्टिसिपेट एक्टिवली। You need to obtain information and details pertaining to the background, qualification, caliber, experience and knowledge of the PMC। So before appointing him, इन सब चीज़ों का आप इंफॉर्मेशन निकालिए।
investigate their market reputation, the delivery of their projects and any litigation history. इन चीज़ों का आप अध्ययन कीजिए कि जिस किसी को आप अपॉइंट करने वाले हो, whether they are the right people for the redevelopment. Because understand, once you appoint the PMC, that virtually will decide the fate of the redevelopment process. Because I am repeating again, if by mistake for any reason you choose the wrong PMC, there is all possibility that you will be in problem. The role of the PMC A is to conduct the survey of the building and land of the society. B, to take information about the conveyance of the land of the society. C, to take information about the FSI and TDR available to the building and land of the society by considering the existing policy of the government and similarly rules of the MHADA, SRA, municipal corporation according to the ownership of the land. Now, once the PMC has been appointed, उस PMC का पहला कर्तव्य होगा to prepare a feasibility report. So, in order to prepare the feasibility report, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं. ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. देखो, लोगों को क्या होता है, लोगों के पास 6 सवाल होते हैं. 6 सवाल. किसी भी सोसाइटी में आप जाओ रीडेवलपमेंट को लेकर, मेंबर्स के 6 सवाल पक्का होते हैं. वो कौन से हैं? मेंबर्स वुड लाइक टू नो, अगर मेरी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है तो मुझे एडिशनल एरिया कितनी मिल सकती है, मुझे कॉर्पस फंड कितना मिलेगा, मुझे रेंट कितना मिलेगा, मुझे शिफ्टिंग चार्जेस कितना मिलेगा, मुझे बैंक की गारंटी कितनी मिलेगी सोसाइटी को, मुझे मतलब सोसाइटी को, एंड ये बिल्डिंग कितने टाइम में पूरी की जाएगी, मतलब रीपोजिशन मुझे कितने वक्त में मिलने वाला है. दीज आर द बेसिक 6 क्वेश्चंस that every individual member is carrying in his head, and they will be answered when the feasibility report is presented to you. So in order to arrive or rather obtain the answer to these 6 questions, the architect needs to go through all these documents that I have mentioned over here. Only on study of these documents he will be able to prepare a feasibility report which will be near to accuracy. The role of the PMC further is, as I said, to prepare the realistic feasibility report in accordance to the society records and documents, and considering the suggestions, recommendations regarding the redevelopment, and considering matters like residential area to be made available for the members, commercial area, open land, garden, parking, specific of the construction. इन सब चीज़ों का लेखा जोखा after he receives information, inputs regarding all these matters, only he can initiate the procedure for preparing a proper feasibility report within 2 months from the date of their appointment. Once the feasibility report is prepared, it is the duty of the PMC to submit this report to the managing committee, because you will agree with me, anything that comes to the society first goes to the managing committee. Managing committee उसको पढ़ लेती है. एक बार वो पढ़ने के बाद ही उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करनी वो सोचा जाता है. वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. Number 1, although it is a special general body meeting, instead of 5 days clear notice, you will be giving a 14 days clear notice. Number 2, for initiating the process of this special general body meeting, you require 2/3 of quorum. बायलॉज में लिखा है 20 और 2/3, यहाँ पे 20 नहीं, 2/3 quorum जब तक नहीं होता है, मतलब 67% मेंबर्स जब तक अटेंड नहीं करते हैं तब तक आप मीटिंग शुरू नहीं कर सकते हो. दिस मीटिंग कैन बी अटेंडेड ओनली बाय बोनाफाइड मेंबर्स, मतलब ओरिजिनल मेंबर, प्रिंसिपल मेंबर जिसको हम कहते हैं, या को ओनर जॉइंट मेंबर, और इन देयर एब्सेंस एन एसोसिएट मेंबर. मतलब उस दिन डैडी की तबीयत खराब है इसलिए मैं आया हूँ, या मम्मी ऑफिस से लेट आने वाली है इसलिए मैं अटेंड कर रहा हूँ, या वाइफ को आने की इच्छा नहीं इसलिए मैं अटेंड कर रहा हूँ. अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस और एनी रीजंस, दिस मीटिंग पर्टिकुलरली ओनली बोनाफाइड मेंबर्स आर अलाउड टू अटेंड.
The highlights of the quotation and terms and condition and scope of the work with the professional fees are going to be discussed. मतलब उस दिन उस मीटिंग में सिलेक्शन के पहले हर पीएमसी का कोटेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, उनका टर्म कंडीशंस क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उनकी प्रोफेशनल फीस क्या है, वो लोगों को बताई जाएगी. उसी प्रकार से वंस पीपल डिसाइड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द पीएमसी, a written consent will be taken from each member where they will reconfirm their choice of the PMC. So selection although will be carried out by the voting process by show of hand or secret ballot, each member is required to give their consent in writing about the selection, the minutes to be prepared of this SGBM and a copy to be sent to members within 7 days. Now ये जो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी within 7 days you are supposed to initiate and circulate the copy of these minutes. Acknowledgement will be kept with the record with the office, मतलब जो भी acknowledgement आप लेते हो वो आप ऑफिस में रखोगे. 1 copy to the registrar. Society is required to submit once the appointment is confirmed of the PMC. The society will issue an appointment letter to the PMC and the PMC will also issue their acceptance letter. So the committee in short will execute an agreement with the architect or the PMC according to the terms and conditions of the which are approved in the SGBM. So SGBM में अगर कोई सुझाव है, कोई डिस्कशन है उस विषय के ऊपर, बेस्ड ऑन दैट जो भी फाइनल पीएमसी होगा उसके साथ वो तय करके एक प्रकार का एग्रीमेंट आपकी कमिटी करेगी उनके साथ, जो एग्रीमेंट आपकी कमिटी के ऊपर मतलब सोसाइटी के ऊपर और पीएमसी के ऊपर लागू होगा. नाउ यहाँ पे वंस द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन which is available in the feasibility report is classified information. So that information should not be circulated in and around. It is to be kept highly confidential with the members. So once the feasibility report is obtained, the notice of the MC will be given inviting the architect and PMC for approval of this to be displayed on the notice board. So notice board पे एक सर्कुलर लगाया जाएगा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमको मिल चुका है एंड उसकी एक कॉपी हमारे पास अवेलेबल है जिसको सोसाइटी के ऑफिस में रखा जाएगा इंस्पेक्शन के लिए. जो मेंबर चाहते हैं कि वो आके उस कॉपी को पढ़े और अपने व्यूज़ दे, तो वो मेंबर्स उस प्री डिसाइडेड पीरियड में आकर उस कॉपी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. दे कैन मेक देयर नोटिंग्स वॉट एवर दे वांट टू, and whatever submissions, observations that they have, they need to submit it 7 days before the next managing committee meeting, because uske base pe the committee is going to deliver the information to the PMC. Now copy of the MC notice to be delivered to each member, मतलब जब आप MC मीटिंग बुलाओगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको संभाल के रखना है. सेक्रेटरी टू फॉरवर्ड टू द आर्किटेक्ट एंड PMC सजेशन रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स. सो जो भी सजेशंस, ऑब्जेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस जो मेंबर देंगे बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसको पढ़ने के बाद तो मेंबर का दायित्व है कि उनके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वो पहुंचाना चाहते हैं सोसाइटी तक, तो वो राइटिंग में वो कमिटी को पहुंचा सकते हैं और कमिटी ये इन्फॉर्मेशन पीएमसी को पहुंचाएगी, बेस्ड ऑन विच द पीएमसी विल प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट. नाउ वंस द फाइनल ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड, सबमिट टू द मैनेजिंग कमिटी. The managing committee will go through it. If they have found out anything, they will inform. जो भी इंस्पेक्शन के थ्रू आए वो इन्फॉर्म किया जाएगा. उसके बाद एक फाइनल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक्सप्लेन किया जाएगा. अब इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो समझ लीजिए. इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत आपको ये पता चलेगा कि अगर आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है तो आपको एडिशनल एरिया कितना मिल सकता है. These are all benchmarks. Please understand. These are not offers. So roughly एक estimate आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है तो based on the records and documents of your society, based on the calculations done by your architect PMC, based on the profit and loss calculated for the project, you will be coming to know, आपको पता चलेगा कि आपको roughly कितना एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हो
रफली कितना कॉर्पस फंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, रफली उस एरिया में जो रेंट चल रहा है वो कितना आपको मिल सकता है, शिफ्टिंग चार्जेस किस हद तक या क्या, व्हाट इज़ द काइंड एग्जैक्टली आपको मिल सकता है, बैंक गारंटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, अगर मिल सकती है तो कितने तक मिल सकती है, एट द सेम टाइम ऑन टाइम पोजीशन, मतलब ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितनी अवधि लगने वाली है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगी। एट द सेम टाइम आपको पता चलेगा कि टोटल एफएसआई कितना जनरेट होने वाला है प्लॉट के ऊपर, हेडवाइज बाइफर्केशन के तहत कितना एक्सपेंसेस या टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा वो आपको फिजिबिलिटी में देखने को मिलेगा। एम्यूनिटीज़ कौन से आप डिसाइड करते हो वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे फिटनेस सेंटर, योगालय, सोसाइटी ऑफिस, सोलर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपको, बिकॉज बेस्ड ऑन द एम्यूनिटीज दैट यू डिसाइड द फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल वेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंबर्स ने ख्वाहिश जाहिर की कि वी वुड लाइक टू हैव अ स्विमिंग पूल, तो डेफिनेटली आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, लेकिन द मोमेंट यू ऐड अ स्विमिंग पूल इनटू द लिस्ट ऑफ एम्यूनिटीज, उसका खर्चे के एवज में आपकी फिजिबिलिटी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। वो एम्यूनिटीज आप क्या डिसाइड करते हो वो बहुत अहम है। एट द सेम टाइम जो एम्यूनिटीज मलाबार हिल में या चर्चगेट में या मरीन ड्राइव में है जहाँ बिल्डिंग रीडर में जाती है, मे बी द एम्यूनिटीज एट कांदिवली और गोरेगांव और विरार और भाईंदर में डिफर। तो ये एम्यूनिटीज़ की लिस्ट भी आपको फिजिबिलिटी में रफली आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई किस प्रकार के एम्यूनिटीज़ सुझाए गए हैं। यहाँ पे ये सिर्फ सुझाव होता है, बिकॉज अल्टीमेटली बिल्डर आने के बाद जो आपकी कमिटी, आपकी जनरल बॉडी जो डिसाइड करती है वो दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल, बट यहाँ पे एक सुझाव होता है। उसी प्रकार से इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इफ देर आर एनी पेंडिंग कंप्लायंसेस रिगार्डिंग लीगल एस्पेक्ट्स तो वो आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी ने कन्वेंस नहीं किया है किसी वजह से एंड सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए आगे जा रही है, तो उस कन्वेंस को करने के लिए क्या खर्चा आएगा, उसके रजिस्ट्रेशन में क्या खर्चा आएगा, एडजुडिकेशन प्रोसेस में कितना खर्चा आएगा, प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ाने में एक रफ एस्टिमेट आपको उसमें दिखेगा। तो डेफिनेटली अगर आप बिल्डर अपॉइंट करते हो और उससे आप एक्सपेक्ट करने वाले हो कि ही इज़ गोइंग टू डू ऑल दिस फॉर यू, तो उसका खर्चा इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होने वाला है और वो खर्चा माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट वर्कआउट कर होने वाला है। अब इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सबसे बड़ी अहमियत क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज दैट दिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बिफोर यू अपॉइंट अ बिल्डर, दिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट विल टेल यू exactly what kind of estimated profit the builder is going to get. Now post discussions, the MC to approve the feasibility report, MC to initiate a discussion on preparing the tender draft. मतलब once this feasibility report is presented before the general body, the general body discussions are carried out, every aspect of the feasibility report is discussed and explained by the PMC, the architect of the PMC. उसके बाद the next stage would be that you would initiate for preparing the tender draft. जो टेंडर डॉक्यूमेंट आप डिक्लेयर करने वाले हो, रिलीज करने वाले हो, तो उसकी रूपरेखा के लिए आप आपके पीएमसी को बोलोगे कि प्लीज स्टार्ट इनिशिएटिंग द प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग द टेंडर ड्राफ्ट। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब वंस द टेंडर ड्राफ्ट इज फाइनलाइज थ्रू एनी पीएमसी, जो भी आपका पीएमसी होगा, फिर उसको आप जब लॉन्च करने वाले हो, पेपर में ऐड देने वाले हो, तो इट इज नेसेसरी दैट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विल अप्रोच देयर नोन डेवलपर बिल्डर्स टू इनवाइट देयर इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। इन केस ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट, फॉर इन्वाइटिंग टेंडर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, द सेम प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। मतलब once the tender is finalized, once the tender is going to be floated, so it is the members' duty to go and approach their choice or their known builders. Once your society receives the offer, then the secretary will prepare a list of the tenders received, and on the notice board he will publish this information कि आज so and so date शाम को 6-7 बजे whatever date time you decide,
वी हैव रिसीव्ड सो मेनी टेंडर्स, उसकी सारी जानकारी वो नोटिस बोर्ड पे लगा देगा, ये सारी जानकारी वेबसाइट पे डाल देगा, ये सारी जानकारी ईमेल के द्वारा लोगों को भेजेगा, ये सारी जानकारी वो व्हाट्सअप कर सकता है। मतलब किसी भी सूरत में यह सारी जानकारी लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। द मैनेजिंग कमेटी विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द टेंडर रिसीव। जिस दिन वो टेंडर रिसीव हुए है उसके इमीडिएट 15 दिन के अंदर एक कमेटी मीटिंग बुलाई जाएगी, वेयर द टेंडरर और हिज अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अलाउड टू अटेंड। मतलब ये जो मीटिंग बुलाई जाएगी, ये मीटिंग किस लिए बुलाई जाएगी? ये मीटिंग बुलाई जाएगी फॉर टेंडर ओपनिंग। सो एज पर द 4 जुलाई 2019 सर्कुलर, द टेंडर्स आर सपोज टू बी ओपन इन द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग। बट एक बहुत मतलब मज़ेदार क्लॉज है उसके अंदर, विच सेज दैट टेंडर विल बी ओपन इन द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग। बट इस मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में आपकी कमिटी मेंबर्स भी बैठेंगे, आपकी पीएमसी भी बैठेगी, जिन्होंने टेंडर भरा है वो लोग भी बैठेंगे, एंड इफ एनी मेंबर्स आर इंटरेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, दे आर अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। मतलब उनकी सिग्नेचर नहीं ली जाएगी ऑन द अटेंडेंस शीट, बट इफ दे विश टू अटेंड द मीटिंग, दे आर अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। सो इन द प्रेजेंस ऑफ योर कमिटी, योर पीएमसी, your builders representatives and the general public, the tenders received shall be opened. Sorry, once the tenders are opened, then उस टेंडर में से किस किस बिल्डर ने क्या क्या ऑफर दिए वो अनाउंस की जाएगी। 5-6 चीज़ें खाली अनाउंस कर दे कि ये बिल्डर ने इतने एरिया ऑफर किए, सेकेंड बिल्डर ने ये ऑफर किए, थर्ड बिल्डर ने ये एरिया ऑफर किए। इस प्रकार से जो भी बिड्स ओपन किए जाएंगे उनके ऑफर्स क्या है वो सिर्फ आपको बताए जाएंगे। एरिया क्या दिया है, कॉर्पस कितना दिया है, रेंट कितना ऑफ़र किया है, शिफ्टिंग चार्ज क्या ऑफ़र किया है, बैंक गारंटी ऑफ़र किया है कि नहीं किया है, कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला है। ऐसे इस प्रकार की जो भी इम्पोर्टेंट 8-10 चीज़ें हैं वो डिक्लेयर की जाएगी, अनाउंस की जाएगी। उस वक्त मेंबर्स भी अपनी नोटिंग कर सकते हैं कि इस बिल्डर ने क्या ऑफ़र दिया है। जो बिल्डर या उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो ज़रूर नोटिस करेंगे, वो ज़रूर नोट करेंगे कि भाई हमारा ऑफ़र क्या था और कॉम्पिटिटर का ऑफ़र क्या था। उसके बाद ये सारे टेंडर्स वापस बंद करके आपके पीएमसी को दिए जाएंगे, और पीएमसी ये सारे टेंडर्स अपने ऑफिस ले जाकर उसको ठीक तरह से चेक करेंगे, एंड पोस्ट स्क्रूटिनी checking the merit, reputation, experience and competitive rates offered by the interested developer builder, the PMC will prepare a comparative chart। मतलब PMC अपनी तरफ से छानबीन करने के बाद वो अपने अंदाज से आपको बताएंगे कि उनके हिसाब से कौन सा बिल्डर ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है। Having said that, please be rest assured that the final developer selection will be the prerogative of the general body only। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पीएमसी को लगता है कि ए बिल्डर सबसे अच्छा है तो नॉट नेसेसरी कि सोसाइटी को ए बिल्डर के साथ ही रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू करनी है। सोसाइटी अपने खुद के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, अपने खुद के डिसीजंस के ऊपर बी सी डी जो बिल्डर उनके पसंद का है उसको वो फाइनलाइज कर सकती है। जनरली द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन इज एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, दिस इज एज पर अगेन 4 जुलाई, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट ऑफ द सिलेक्टेड डेवलपर और देयर एसोसिएट्स और असिस्टेंट्स शुड बी रजिस्टर्ड विद महारारा। नाउ ये जो टेंडरिंग प्रोसेस आप करने वाले हो, जो एडवर्टाइजमेंट आप पेपर में देने वाले हो, वहाँ पे आप एक डेट दोगे कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट अगर टेंडर आने हैं तो सपोज इफ मिनिमम 3 टेंडर्स आर रिसीव्ड विद इन द पीरियड जो भी आपने डिसाइड किया है, देन दे विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल। मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको 30 टेंडर आने उसके बाद आपको आगे जाना है। अगर उस पीरियड में 3 टेंडर आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कंसिडर दोस 3 टेंडर्स एंड गो अहेड विद सिलेक्शन ऑफ द बिल्डर फ्रॉम दैट। सपोज उस पीरियड में लेस देन 3 टेंडर्स आते, 1 या 2 ही आए, तो यहाँ पे प्रावधान ये दिया गया है कि सोसाइटी कैन डू एन एक्सटेंशन ऑफ 1 वीक
and wait if more than 3 tenders they are able to obtain, or they are able to obtain at least 3 tenders. Suppose in the extension period also 3 टेंडर नहीं जमा हुए हैं तो और एक हफ्ते का एक्सटेंशन आप ले सकते हो. लेकिन once this period is over of the 2 extension, then post extension of the second extension, if even you have less than 3 tenders are received, they should be considered for approval. Now the managing committee is required to submit an application within 7 days with the list of members to the register for appointing the AO. Now once the tenders are opened, once the builders, you know which builder has approached you, then obviously the members are supposed to do some investigation regarding those offers which you have received. मतलब बिल्डर के सिलेक्शन से पहले आप ये फाइंड आउट कर लो कि ये बिल्डर ने कितना काम किया है, कहीं लिटिगेशन हिस्ट्री तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसका, क्या ऑफर दे रहा है. बहुत सारी चीज़ों को का अध्ययन करने के बाद आपको किसी नतीजे पे पहुंचना है. नाउ वंस यू रीच to some kind of a decision, then it is necessary that you conduct a special general body meeting for selecting one out of the final 3, 2 or whatever builders that have come your way. Now to conduct this process, the managing committee is required to submit an application within 7 days with the list of members to the register for appointing the authorized officer. मतलब PM बिल्डर सिलेक्शन के लिए जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आप बुलाने वाले हो, उस स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक ऑथराइज्ड ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा. ही विल बी अपॉइंटेड फॉर सिटिंग इन दैट मीटिंग. हिज रोल विल बी टू सुपरवाइज द मीटिंग एंड टू एंश्योर दैट all provisions of the section 79A are carried out by the society. The secretary will call a special general body meeting within 1 month with prior permission of the authorized officer and by fixing the time and place for the appointment of the developer. So ये जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ली जाएगी उसका डेट टाइम सब कुछ डिसाइड किया जाएगा, जिसके लिए उस ऑथराइज ऑफिसर की अनुमति ली जाएगी या उनको पूछा जाएगा कि भाई कहाँ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा टाइम सूटेबल है. और इस मीटिंग की जो एजेंडा नोटिस है वो 14 डेज पहले हर मेंबर को आइदर बाय हैंड डिलीवरी और रजिस्टर पोस्ट और ईमेल, जो लोग आउट ऑफ इंडिया है उनको आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक्नॉलेजमेंट आपको आपके रिकॉर्ड्स में रखना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मैंने अभी बताया कि आप ऑथराइज ऑफिसर को नियुक्त करने के लिए जब अर्जी देते हो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो दैट एप्लीकेशन दैट यू आर गोइंग टू डू टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस विल कंटेन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट विच आई एम प्रेजेंटिंग हियर बिफोर यू. ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचाना. उस the requisition letter signed by 20% minimum members, the managing committee and special general body minutes, मतलब जितने भी मीटिंग आपने लिए हैं which are pertaining to the redevelopment, आपका feasibility report, the tender copy, उसकी एक प्रत, जो आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था उसकी एक प्रत, न्यूज़पेपर की कटिंग, लिस्ट विद द डिटेल्स ऑफ द टेंडर सोल्ड, कितने टेंडर बिक गए थे उसकी एक लिस्ट आपको उसमें जोड़नी है. उसके बाद आपको ऑफर्स किस बिल्डर से मिले उसके इन्फॉर्मेशन डालना है, कंपेरेटिव चार्ट डालना है कि ऑफर्स जो रिसीव हुए थे उसका कंपेरेटिव चार्ट क्या था. जितने भी, जैसे मैंने कहा कि जितने भी मीटिंग्स हुए हैं, कॉपीज ऑफ द मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी एंड द जनरल बॉडी मीटिंग्स हेल्ड फॉर डिस्कशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रीडेवलपमेंट. मतलब सिंस द डिस्कशन स्टार्टेड, जितने भी मीटिंग्स आपने कंडक्ट किए इस विषय के ऊपर, उस मीटिंग्स की एक एक कॉपी उस फाइल में रखना बहुत ज़रूरी है. और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है, वो आपका जो पीएमसी होगा वो आपको गाइड कर सकता है उसमें. उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इस फाइल में आपको जोड़ना है. इस फाइल को, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप जोड़ रहे हो उनको
सेक्रेटरी सर्टिफाई करेंगे एज ट्रू कॉपी बाय पुटिंग अ रबर स्टैम्प एंड साइनिंग इट. द सेक्रेटरी शाल अपलोड द एजेंडा ऑन द सोसाइटी वेबसाइट. Representative of the registrar shall ascertain that the authorized representative of those whose tenders are submitted are present. उस मीटिंग में बिल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव या बिल्डर्स खुद वहाँ आके बैठ सकते हैं. इस मीटिंग की एक खासियत ये है कि इस मीटिंग का वीडियो शूटिंग किया जाएगा. नॉर्मली हम स्पेशल जनरल बॉडी की शूटिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे शूटिंग किया जाएगा. और जैसे मैंने कहा कि ओनली बोनाफाइड मेंबर्स विल बी अलाउड एंड सिलेक्शन ऑफ डेवलपर एंड बिल्डर शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एओ. ऑथराइज ऑफिसर के सामने ही होगा. जितनी भी कार्रवाई इस स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में की जाएगी वो सारी कार्रवाई ऑथराइज ऑफिसर के सामने की जाएगी. अब ये मीटिंग बुलाने का फिर से जो उन्होंने स्पेशल कंडीशंस दिए वो सिमिलर है कि इसमें कोरम 2/3 होगा. इफ कोरम इज नॉट अचीव्ड देन द मीटिंग विल बी एडजर्न्ड फॉर 7 days. ये मैं आपको इसलिए रेड में दिखा रहा हूं कि नॉर्मली यू ऑल नो व्हेन अ मीटिंग इज एडजर्न्ड इट इज एडजर्न्ड फॉर हाफ एन आवर एंड आफ्टर दैट वॉट एवर इज देयर इज द कोरम. बट यहां पे अगर कोरम अचीव नहीं होता है तो ये मीटिंग 7 days के लिए एडजर्न की जाती है. गॉड फॉरबिड अगर 7 दिन के बाद भी ये कोरम फुलफिल नहीं होता है then it is assumed that members are not interested in the redevelopment, and 3 months after that this subject cannot be brought before any general body meeting. इसलिए इस मीटिंग को बुलाने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी जरूरी है. Once you call for this meeting, the committee needs to ensure that minimum 2/3 members, 67% members will be present for this meeting. नाउ ये मीटिंग का जो एजेंडा है वो भी प्री डिसाइडेड होता है. क्या एजेंडा होगा इस मीटिंग का? नंबर 1, टू डिस्कस द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफर्स रिसीव्ड. जो ऑफर आपको मिले हैं वो फिर से एक बार दोहराए जाएंगे सबके सामने. ऑल ऑफर्स विल बी प्रेजेंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मतलब ये नहीं कि जो अच्छा ऑफर है वो पहले बता दिया, बुरा ऑफर है लास्ट में. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बिल्डर आपके पास आए हैं उनके ऑफर्स पढ़ी जाएगी. थर्ड विल बी वोटिंग प्रोसीजर लिया जाएगा जहां पे आपको वोट करने को कहा जाएगा. किसी भी 3 में से एक डेवलपर को आपको वोट करना है. उसी प्रकार से आपको डेवलपर जिस डेवलपर या बिल्डर को आप अपॉइंट करने जाओगे या उसका अपॉइंटमेंट वहां पे फाइनलाइज होने वाला है उसके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाएगा. एंड आखिर में नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाली रीडेवलपमेंट के, इसके बारे में एक चर्चा वहां होने वाली. नाउ कंक्लूजन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? Confirmation of the appointment of the developer contractor with a written consent of minimum 51%. मतलब 51 लोगों ने अगर कंसेंट दे दिया राइटिंग में ये प्रोसेस आपकी आगे बढ़ गई है. एब्सेंट मेंबर्स रिटन और ओरल और एनी अदर टाइप ऑफ अप्रूवल अपॉन रिमार्क शैल नॉट बी कंसिडर. मतलब आप अगर मीटिंग में नहीं हो और आपने कोई कंसेंट भेजा है, कोई ओरल में कोई ओपिनियन भेजा है, कोई रिमार्क भेजा है, कंसेंट तो आपका कंसिडर किया जाएगा. लेकिन अगर कोई ओपिनियन या कोई रिमार्क है आपका तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. इवन इफ द सिलेक्टेड बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर इज और द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट प्रेजेंट, किसी कारणवश वो इस मीटिंग में नहीं आते तो भी उनकी कंसेंट ली जाएगी. मतलब इट विल बी अज्यूम्ड कि भाई वो रेडी है इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए. पोस्ट सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर द डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन 3 months. देखो इस 4 जुलाई सर्कुलर की खासियत ये है कि फॉर एवरी स्टेज इन दिस रीडेवलपमेंट उसको एक अवधि दिया गया है. मतलब एंड तक उसको ओपन नहीं रखा गया है. फॉर एवरी स्टेज एक पीरियड दिया गया है. तो अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपको करना है तो उसके लिए इट इज सेड दैट पोस्ट सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर द DA डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन 3 months पीरियड. फर्दर, subject to the size of the redevelopment project, the completion period of the project shall be more than 2 years and in exceptional cases not more than 3 years. The developer shall make available alternative residential facility till the completion of the project. In short, once the developer is selected, once the DA is completed, then you are going to go and vacate the premises. Okay. So the DA and the PAAA, that is Permanent Alternate Accommodation Agreement,
These documents are required to be registered as per the Bombay Registration Act 1908. Sorry, as per the Registration Act 1908. New members will be admitted in the society after the completion of the redevelopment. मतलब redevelopment होने के बाद सोसाइटी आपकी चालू रहेगी, मतलब बिल्डिंग खत्म हो गई. Once the building is demolished, the society does not get defunct. The society still is operational, and once the new building is prepared, people come to stay back. जो सेलिएबल पोर्शन होगा, जो नए लोग जो खरीद के अंदर आते हैं, they will become members of the old society. So society will continue. The clear mention of carpet area is required to be mentioned in the agreement copy. The developer rights to be non-transferable, मतलब आपने जो उसको राइट्स दिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, किसी भी हालत में वो राइट्स वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है. Members to vacate their tenements only after getting all legal approvals from the redevelopment and registration of the PAAA. मतलब जब तक the builder does not provide you with all required legitimate documents, members will not vacate their premises, especially PAAA, permanent alternate agreement. जब तक रजिस्टर नहीं होता है तब तक कोई भी अपना घर की चाबी उनको नहीं देंगे. The rights of those who have flats in their possession shall be unaffected. Any dispute between the society and the appointed architect contractor to be resolved as per the provisions under section 91 of the act. Now the allotment of the flats to be as per the present situation, मतलब ground floor वाला first floor जाएगा, first floor वाला second floor जाएगा, it is always that, or by lottery system in the presence of the representative of the registrar with video shooting. सो ये भी विकल्प आपके पास है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई बार हमने देखा है कि लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं लॉटरी पे. जब तक अपने चॉइस की लॉटरी निकलती है तो लोग खुश होते हैं, अपनी चॉइस की लॉटरी नहीं निकली तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे अटकलियाँ लगाई जाती है, ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं. तो द सेफेस्ट मेथड फॉर अलॉटमेंट इज दैट यू गो एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन, विच इज द मोस्ट सेफ, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. Any member or his relative or office bearer of the society should not be the developer. Developer कोई भी office bearer या उनका relative नहीं हो सकता है. Building plans sanctioned by the municipal corporation or the competent authority should be placed before the general body. Members can get certified copy against written application made to the society. It is binding on the managing committee to provide the information by charging due fees. मतलब जो भी sanction होता है, आपका प्लान आपकी मर्जी के बगैर विदाउट सैंक्शन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा. तो जब तक जनरल बॉडी सैंक्शन नहीं करती है वो प्लान अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा. और जो प्लान अप्रूवल के जाता है उसकी कॉपी मांगने का अधिकार आपके पास है. मैनेजिंग कमेटी आपको दे सकते हैं. उसका जो खर्चा है, कॉपिंग चार्जेस जो भी है, वो आपको भरना है और आपको कॉपी डेफिनेटली मिलेगी. फाइनली, प्राइम पॉइंट्स फॉर अ सक्सेसफुल वेंचर: implement a democratic process to carry out the redevelopment. The project always to be by the people, of the people and for the people. The original members to have their first say. Transparency and coordination to be maintained at every point. All issues to be sorted out with the help of the appointed PMC. इस पूर्ण प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखिए, PMC is going to play a very very important role. दूसरी भाषा में अगर मुझे आपको समझाना हो तो इट इज लाइक अ महाभारत. रीडेवलपमेंट इज लाइक अ महाभारत दैट यू आर एंटरिंग. यू आर द पांडवास हु वांट टू विन दिस बैटल. सो अनलेस श्री कृष्ण डज नॉट कम ऑन बोर्ड, आप वो बैटल जीत नहीं पाओगे. महाभारत आप सभी को पता है कि इट वॉज वन बिकॉज श्री कृष्ण जिसके साइड में थे वो जीत गए. तो गाइडिंग फैक्टर कौन था? श्री कृष्ण. योर पीएमसी इज योर श्री कृष्ण. सो पीएमसी का सिलेक्शन जब आप करते हो तो प्लीज एंश्योर दैट यू सिलेक्ट द राइट पीएमसी, बिकॉज फॉर एनी रीजन इफ द सोसाइटी फॉल्टर्स इन इट्स सिलेक्शन ऑफ द आर्किटेक्ट पीएमसी, किसी भी कारणवश, पैसे कम थे या इसको मैं जानता नहीं था, किसी भी कारणवश अगर सोसाइटी ने गलत पीएमसी सिलेक्ट किया, देन व्हाट हैपेंस? लास्ट स्लाइड. देन यू आर सिंपली एट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. नंतर फक्त देव वाचवू शकतो तुम्हाला. जर चुकीचा पीएमसी निवडलात
तर प्रोजेक्टचे हाल कुत्रा खाणार नाही. देवाची आराधना करत बसावं लागतं आपल्याला. आणि रस्त्यावरती लोक जी येतात ती ह्या कारणाने येतात की समवेअर दे हॅव मेड अ मिस्टेक ऑफ सिलेक्टिंग द रॉंग PMC. So this is all what I had to share with you regarding the 4th July 2019 circular.